Okay, so we are going to start chapter energy. अच्छा, आप लोगों ने ब्रेक के मतलब वैकेशन पे जाने के पहले साउंड का क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया था, उसको रिटन प्रैक्टिस किया आप लोगों ने घर पे लिख के? अगर नहीं किया है तो लिख के कर लो, ठीक है? और जब भी आते हो एक बार दिखा लेना, मैं रीड कर लूंगा कैसे लिखते हो आप लोग, तो आपका आज मैं रीड कर लूंगा आफ्टर द लेक्चर। बाकी लोग भी लिख करके लेकर के आएंगे तो उनका रीड कर लूंगा, ठीक है? अगर if there is any improvement or any suggestions, I'll give it to you guys. You can accordingly update your answers. Fine. So let us start the energy chapter. Theme of the chapter is, as per our book, building on previous learning on energy. Emphasis in this class is on the introduction of gravitational potential energy to children. Look at the swinging bob of a pendulum. When it is at its extreme position, that is the highest point of its motion, it has gravitational potential energy. When it reaches its mean position, that is lowest point. So basically what they are trying to say is, this is how our general bob is going to look like, right? And while moving, it is going to transverse things like this from here to here and then back to this position, the another extreme, and then it comes back to its mean position, move towards right end, and then again back to the mean position, and then to the extreme left, and this process keeps on. ठीक है? These two are called extreme positions, this one and this one. Position 1, position 2, position 3. Position 1 and position 3 are called extreme positions. Position 2 is called mean position. Here all the energy is in form of gravitational potential energy. Here all the energy is in form of kinetic energy. And here again all the energy is in form of gravitational potential energy. What about at this point or any intermediate point? It will have both kinetic and potential energy. Okay. So when it reaches its mean position, it has maximum speed and it has high kinetic energy. In this case, one form of energy changes into other according to law of conservation of energy. Energy is the ability to do work. Can we just highlight that sentence? Energy is ability to do work. थर्ड पॉइंट पे क्या है? जीपीई मैक्स के 0, यहाँ पर 2 पर क्या है? के मैक्स जीपी is equal to minimum, not 0. 0 will be decided actually what reference point we are choosing. So it will be definitely minimum, but whether it will be 0 or not will be decided. GP जो होता है वो reference point, potential energy हमेशा reference point dependent होता है, ठीक है? Again 1 पर क्या होगा? GP अभी आगे चल के पढ़ेंगे हम. GP is equal to max, ठीक है? और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इक्वल टू 0 या फिर मिनिमम बोल सकते हैं. एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी का मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकता है, बाकी पॉजिटिव वैल्यू रहेगा. जीपीई का मैक्सिमम मिनिमम जो होगा, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है और मिनिमम भी कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी के साथ ये एक स्पेसिफिक रूल जुड़ा होता है. व्हेन वी विल लर्न वी विल कम टू सी इट. Energy is ability to do work.
आप लोग हाईलाइट कर सकते हो या लिख भी सकते हो, एबिलिटी टू डू वर्क। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा? जूल। ये कैसा यूनिट होता है? दिस इज एसआई यूनिट। और कोई यूनिट जानते हैं हम लोग एनर्जी का? कैलोरी एंड किलो कैलोरी एंड किलो जूल एंड मेगा जूल एंड केजे तो हो गया ना। एक और यूनिट है अर्क, दिस इज कॉल्ड सीजीएस यूनिट। ठीक है, क्या है? तो इसमें इंडिपेंडेंट यूनिट्स जो हैं ये दो तीन यूनिट्स होते हैं, एक तो जूल होता है, दूसरा कैलोरी होता है और तीसरा अर्क होता है। ठीक है, जूल, कैलोरी और अर्क का हाँ केजेएम kgm kilogram force that is for weight or force. Can you go a little? Yes. So the conversion units are like this: 1 calorie is equal to 4.184 joules. ठीक है, which is also referred as roughly 4.2 joules. ठीक है, and 1 joule is equal to 1 joule is 1 Newton meter, which is 10 to the power 5 dyne into 100 centimeter. That makes 10 to the power 7 dyne centimeter, or dyne centimeter को we call arc. So 10 to the power 7 arc. ठीक है, 1 dyne centimeter is equal to 1 dyne centimeter is equal to 1 arc. Arc unit of joule, unit of energy होता है, और dyne force का और centimeter distance का. तो force into distance is work done, that is energy. Is that okay? Very good. फोर्स वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो न्यूटन का कैसे डाइन बनता है 10 टू द पावर 5 ये भी बता दूंगा। हाँ बोलिए ना। सेंटीमीटर के बाद कहाँ कुछ लिखा है? इज इक्वल टू सेंटीमीटर नहीं है, डाइन इनटू सेंटीमीटर, दैट्स इनटू। डॉट लिखा है, डॉट का मतलब इनटू भी होता है, या ऐसे डाल दीजिए 1, न्यूमेरिक 1। ठीक है, ये कन्वर्सन आज बता रहा हूं, जिंदगी भर याद रखना, नहीं तो मारूंगा। ठीक है, जिंदगी भर, कम से कम 12वीं तक। इसमें से कैलोरी जो होता है ना, वो एक्चुअली एनर्जी की तो यूनिट है ही, बट वो स्पेसिफिकली हीट एनर्जी की यूनिट होती है। मतलब एकदम शुरू में जब सारी चीजें डेवलप हो रही थी तो हम हीट एनर्जी का यूनिट कैलोरी लिया करते थे। बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम खुद जूल है, उन्हीं के नाम पर ये यूनिट भी जूल पड़ा है। तो जूल को फिर उन्होंने कैलोरी से इक्वेट किया था थ्रू सम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, बोलिए बेटा। 10 to the power 5 dyne into 100 centimeter. हाँ, dyne 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. D by N A dyne. डाइन, हाँ, इंटू सेंटीमीटर, पॉइंट सेंटीमीटर या हाइफन सेंटीमीटर लिखा जाता है। हेलो, यस,
नहीं मुझे भी चाहिए ऐसे कैंडिडेट, अगर मिलते हैं आपको तो भेजिए ना। मैं खुद ही ढूंढ रहा हूँ। थैंक यू। ये कन्वर्सन क्लियर है? कोई डाउट है इस कन्वर्सन में? कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आए? डाइम यूनिट ऑफ फोर्स होता है बेटा, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, न्यूटन इज एसआई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, और डाइम जो है दैट इज सीजीएस unit of force. Is that okay? Similarly, joule is SI unit of energy. Joule J is SI unit of energy, whereas ERG is CGS unit of energy. Yes, 1 second. CGS means centimeter, gram, second. ठीक है, हाँ। यूनिट लिखने के तरीके होते हैं, कई एक सारे हैं, उसमें से एक सिस्टम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो सीजीएस है और दूसरा एसआई है। एसआई यूनिट्स को हम एमकेएस यूनिट्स भी बोलते हैं। एमकेएस मीटर किलोग्राम, यस किलोग्राम सेकेंड, राइट। ठीक है, सो एमकेएस टू सीजीएस में कन्वर्सन हमको डेफिनेटली आना चाहिए। इसके अलावा भी यूनिट सिस्टम्स होते हैं। वन अनदर वन इज एफपीएस। एफपीएस ये ब्रिटिश सिस्टम होता है, ब्रिटिश सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है फुट, जो हम लोग मेजर करते हैं 5 फुट 4 इंच, तो वो वाला ये फुट है। देन पी इज पाउंड, ठीक है, पाउंड एंड आउंस मास मेजरमेंट का यूनिट होता है उनका। एंड देन यू हैव सेकंड, टाइम सब कोई सेकंड में ही मेजर करते हैं। ठीक है, सो दीज आर 3 सिस्टम्स, बट हमको कम से कम एमकेएस एंड सीजीएस, एमकेएस को एसआई भी बोलते हैं, तो एसआई एंड सीजीएस कन्वर्सन्स कम से कम आना चाहिए। ठीक है, जहां पर एफपीएस की वैल्यू चाहिए होगी वहां पर एक आध दो जगह पर चाहिए होती है, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का चाहिए होता है, तो दैट आई विल गिव यू, बट हर जगह पे नहीं चाहिए होता है, तो हर जगह करने की जरूरत। ओके, नेक्स्ट लाइन इज वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स acting on an object changes the position of object. ठीक है, force acting on an object changes its position. For the special case, when the object changes its position along the direction of force, work is given by the product of force and distance moved by the object. Work done is equal to work done is equal to product of force and distance traveled by the object. Distance traveled by the object. But this is conditional. ठीक है, कंडीशन क्या है?
when object moves in direction of applied force. Direction of applied force. Sir, If it is not moving in direction of applied force, so suppose we are something is going like this initially and we started applying force like this, तो क्या होगा, ये ऐसे चलता जाएगा बट इधर भी ऐसे मूव करता जाएगा. सो अभी इसका मोशन शुरू में कैसा था, सिर्फ ऐसे था. जब फोर्स मैंने लगाया, शुरू में ये सिर्फ ऐसे ऐसे जा रहा था. जब मैंने फोर्स ऐसे लगाया तो ये आगे भी जाएगा और ऐसे साइड में भी जाएगा, दोनों तरफ जाएगा. ठीक है, कैसे जाएगा, ऐसे जा रहा है, मैंने फोर्स ऐसे लगाया तो ये आगे भी जाएगा और साइड में भी मूव करता जाएगा. इज दैट ओके? दोनों मोशन इसके अंदर रहेगा. सो इस केस में क्या होगा, the work done will not directly be equal to force into distance move. ठीक है, इस केस में फॉर्मूला कुछ डिफरेंट होता है which you will learn in higher classes. 9th स्टैंडर्ड में वो पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद, fs cos थीटा. हाँ बोलिए बेटा. सर मेरे को आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है. क्यों बेटा? क्योंकि अभी मैंने कैमरा ऑन कर दिया है. वेरी गुड, अभी दिख रहा है. Is it now visible? अस्तव्य, कोई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कहाँ लेफ्ट किया है? बाकी लोगों को दिख रहा है? Am I audible? यस सर. मम्मी मैं अनम्यूट नहीं हो पा रहा. Is the screen visible? Sorry, whiteboard visible to all of you, including Astavya? यस सर. Okay, ठीक है, चलेगा. Work done is equal to force into distance traveled by the object when object moves in direction of applied force. Is that okay? अगर दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, दैट इज फोर्स का एप्लीकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उस केस में ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाइड नहीं होता है, इसका मॉडिफाइड वर्जन अप्लाई होता है और वो आपको अभी पता नहीं है. और बता तो दूंगा मैं, मुझे बताने में कुछ नहीं है. वर्क का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू कॉस थीटा. अब ये कॉस थीटा क्या होता है, ये अभी आप लोगों के बाहर की चीजें समझ के. कॉस के बाद थीटा है बेटा, थीटा एंगल होता है. ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले के ऊपर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस इस चीज के ऊपर है. दिस इज द की थिंग जिसके ऊपर हमको फोकस करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम में. नीचे वाला फॉर्मूला है इस फॉर क्लास 9, वो 9th में जाकर के फोकस करेंगे हम लोग, 9th एंड ऑनवर्ड्स. क्या मतलब हमको लिखना नहीं है ना ये? नहीं, आपको लिखना नहीं है, मैंने बस बता दी. चलिए आगे बढ़ते हैं. बट डिफरेंट पर्संस मे टेक डिफरेंट टाइम टू डू द सेम वर्क. ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. अंडरलाइन दिस. द नेक्स्ट थिंग इज पावर. Power, this is the rate of doing work, rate at which the work is being done, or rate of doing work is power. बोलिए बेटा. So the capability of a person to do something is power? No, the ability to do work is energy and power is rate at which he is able to do the work is power. हाँ बोलो, क्या हुआ?
मेरे को आपका स्क्रीन पहले नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है। Okay, very good. So energy and power are two different physical quantities. This thing should be understood to us at the very basic level. ठीक है, दो अलग अलग चीजें होती हैं, एनर्जी एंड पावर. दे आर नॉट द सेम थिंग. एनर्जी क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क, एंड रेट एट विच द वर्क इज बीइंग डन इज नोन एज पावर. रेट का मतलब क्या होता है? रेट का हमेशा मतलब होता है कितनी जो भी क्वांटिटी है, जिसका भी रेट हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर रेट ऑफ डूइंग वर्क है, तो द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर. हाँ, नहीं बोलो, क्या बोल रहे? नहीं, कैपेबिलिटी और एबिलिटी इज सेम वर्ड. इट्स डू वर्क इज एनर्जी, एंड रेट एट विच द वर्क इज बीइंग डन इज कॉल्ड पावर. रेट का मतलब होता है कितना टोटल काम किया आपने और कितना टाइम लिया, इन दोनों का रेशियो इज रेट. सो 500 जूल ऑफ वर्क करने के लिए मैंने 5 सेकंड अगर लिया तो मेरा रेट क्या होगा? 100 जूल पर सेकंड. ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब किसी ने 300 जूल का वर्क किया और उसने 3 सेकंड लिया, तो हम दोनों का रेट क्या हो जाएगा? सेम. मतलब हम दोनों सेम पावर डिलीवर कर रहे हैं, या हम दोनों की पावर सेम है, बट एनर्जी कितनी है? उसकी ज्यादा एनर्जी है या मेरी ज्यादा एनर्जी हुई? मेरी ज्यादा एनर्जी हुई. 500 मैंने किया ना, उसने किया था 500, मैंने किया था 500 ना, उसने तो 300 किया 3 सेकेंड में. ठीक है, तो मेरी एनर्जी ज्यादा हो गई, कैपेबिलिटी टू डू वर्क मेरी ज्यादा हो गई, बट रेट एट विच वी आर डूइंग वर्क इज प्रिसाइजली द सेम. मेकिंग सेंस? पावर का यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ पावर, इनफैक्ट एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट of power is watt. W-A-T-T, short form is W, and this is equal to joule per second. ठीक है, इसमें भी एक और यूनिट होता है, हॉर्स पावर. 1 हॉर्स पावर is equal to 1 HP. 746 watt. Yes, HP, and that is equal to 746 watt. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होगा वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. वेरी गुड, we are intelligent, but sometimes. That's good, at least they are looking at it. I'm happy. Very good, let us move on. Energy and power are two different physical quantities. इसको भी underline कर ही देना. And they have different units. Obviously, quantity is different है, तो unit different होगा. In many situations, the focus is on power and not on energy. For example, power of a motor which works is paid for electricity consumed, is actually paid for energy consumed. ठीक है, paid for the energy consumed का मतलब, दो चीजें हैं. मोटर खरीदने हम जाते हैं तो उसका पावर कंजम्पशन क्या है वो हम देखते हैं, किस रेट पर वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बिल जो देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, दैट इज गोइंग टू बी कितने घंटे में यूज करता हूँ. ज्यादा पावर का मोटर होगा तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा और ज्यादा बिल देना पड़ेगा मुझे. ठीक है, कम पावर का मोटर होगा, कम एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा, फाइनल बिल कम देना पड़ेगा मुझे. बात समझ में आ रही है? सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल अस.
For example, power of a motor which works is paid for electricity consumed is actually paid for energy consumed. ठीक है? In this chapter, you will learn to define work, जो कि हमने ऊपर किया, express work in proper units, calculate work done in simple cases, define kinetic energy, express kinetic energy in proper units, solve simple problem based on kinetic energy, define potential और energy, define, हाँ बोलो, आप थोड़ा ऊपर जा सकते हो? yes, और ऊपर, define gravitational potential energy, solve simple problems based on gravitational potential energy, describe energy transformation in daily life. Hello, हाँ सर, बताता हूँ सर, अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं बात करता हूँ. ओके सर. Or describe energy transformation in daily life situation, distinguish between energy and power, plan an experimental investigation or demonstration using scientific processes, identify, select on basis of attributes. ये आखिरी के दो काम तो experimental हैं. Learning objectives, revision, building on children's previous learning, explaining concept of work done with examples from daily life, calculating work done in simple cases. Again, simple case किसको बोलते हैं? जब line of force, line of application of force and movement of particle same direction में होता है, that is called simple cases of work done. ठीक है? Explaining kinetic energy and potential energy, gravitational potential, problems on KE and PE, demonstrating kinetic potential energy using simple pendulum, explaining children in engaging children in problem solving, explaining and discussing with children energy transformation in daily life, explaining difference between energy and power, examples of different applications of conservation of energy, roller coaster production of hydroelectricity with children, making energy conservation diagram and reduce that energy is conserved. ठीक है? Knowing concepts, concept of work, unit of work, calculation of work done in simple cases, kinetic energy, basic concept, potential energy, basic concept, gravitational potential energy, calculation of kinetic energy and potential energy from set of given data, assuming G is equal to 10 meter per second square, energy transformation in common daily life situations, differentiate between energy and power. तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे. अब शुरू होता है हमारा चैप्टर, जिसमें सबसे पहला चीज है वर्क. ठीक है, जिसका बेसिक डेफिनेशन है क्या? बोलो. Force applied on a body into distance traveled by the Body. in the direction of In the direction of force. ठीक है, यही टेक्निकल डेफिनेशन है वर्क का, और कोई डेफिनेशन नहीं. ठीक है, when a force is applied on a body, the distance moved by the object, so the product of force applied on the body and the distance moved by the object in the direction of force is equal to the work done. ठीक है, in everyday life all of us do some work. Hello, yes. We do work when we play, when we go to school, when we climb a staircase, when we pedal a bicycle, when we lift a load, and so on. In common language, we use the word work much casually. For example, if we push a wall, we say that work is done by us. ठीक है, अगर हम wall को push करते हैं, we say we are doing work. But technically, are we doing work? The answer is no. Technically, no. ठीक है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, बड़े लेवल पर वी आर नॉट डूइंग एनी वर्क. माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यस वी आर डूइंग सम वर्क.
So the level at which we are going to look at, and obviously according to the definition of work, whether we are doing work or not is going to change. For example, मैंने अगर कोई wall को press किया, ठीक है, तो wall तो move नहीं किया. अगर move नहीं किया तो wall then कैसा? Force into displacement होता है, distance covered होता है. अब ये move करेगा तब तो कुछ होगा. Move ही नहीं किया तो so कोई work done नहीं. But इसको जब मैंने प्रेस किया तो मेरा हाथ थोड़ा दब गया और दीवार भी थोड़ा सा तो दबा होगा, ठीक है, दबना ही है उसको, दिखे ना दिखे दैट इज अनदर थिंग, ऑब्जर्व हो या ना हो दैट इज अनदर थिंग. बट एटलीस्ट चलो वॉल का दबना ऑब्जर्व नहीं होगा, बट मेरे हाथ का दबना तो ऑब्जर्व हो सकता है. मेरा हाथ मसल्स जो है वो थोड़े से डिफॉर्म हुए, ठीक है, तो यहाँ पर अगेन डिफॉर्मेशन एनर्जी इज गेटिंग, या इसको पोटेंशियल, डिफॉर्मेशन एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं. तो यस, सम एनर्जी चेंजेस डेफिनेटली टेकिंग प्लेस, बट इज वर्क बीइंग डन ऑन द वॉल? नो. वर्क कहां हो रहा है? मेरे हाथ पर हो रहा है, क्योंकि हाथ ही तो कॉम्प्रेस हो रहा है ना, वॉल थोड़ी कॉम्प्रेस हो रहा है, विजिबली तो कॉम्प्रेस हो नहीं रहा है, तो वहां पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, मेरे हाथ पर हो रहा है. जनरली हम ये पूछते हैं, वॉल को पुश कर रहे हैं तो वॉल पे वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो वॉल पे वर्क नहीं हो रहा है. हाँ. So your hand is doing work and work is being done on your hand. Yes. ठीक है. If we push a wall, we say that work is done by us while reading, but wall के ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि वॉल मूव नहीं कर रहा है फोर्स लगाने से. ठीक है. While reading a book, we say that we are working, but actually no work is done in these activities. क्यों? क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है. ठीक है. घूम घूम करके पढ़ाई करेंगे तो वर्क होगा, ठीक है ना. गुड. वॉल को पुश किया, नो वर्क इज डन इन केस ऑफ पुशिंग अ वॉल. रीडिंग is a kind of mental work, no work is done. In physics, the word work is a space, has a spatial meaning. Work is said to be done only when body changes its position or move on applying a force on it. No work is said to be done if there is no motion produced in the body, even when a force acts on it. Thus, इसको अब अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए. वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मूव्स इट. इफ नो मोशन टेक्स प्लेस, नो वर्क इज सेड टू बी डन. ठीक है. वर्क इज सेड टू बी डन if the force applied on a body moves it. If no motion takes place, no work is said to be done. For example, a cyclist pedaling a cycle does work. A horse pulling a cart does work. An engine pulling a train does work. A coolie lifting a box does work. A boy climbing the stair does work. A boy lifting a book does work. ठीक है. इन सारे केसेस में फोर्स एप्लीकेशन की वजह से देयर इज सम मोशन व्हिच इज हैपनिंग, देयरफॉर द वर्क इज सेड टू बी डन. हाँ, जैसे अभी आपने पेंसिल बॉक्स को उठा करके ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर किया, you did some work. Good. When a crane picks up a car involved in an accident and takes it to a workshop, we say that work is done.
In a school playground, while playing football, when a boy hits the ball and runs towards the goal, we say that work is done. A boy climbing upstairs does work. A person does no work if there is no change in position or no motion even after application of force. Okay? For example, a boy pushing a car or a heavy stone does no work if the car or stone does not move, although he may get tired. ठीक है? पुश कर करके स्टोन को वो बच्चा धीरे धीरे थक जाएगा, बट स्टोन ना तो मूव करेगा और ना ही कार मूव करेगी, इसलिए उसने टेक्निकली कोई काम नहीं किया, बस थक गया। कार कैसे मूव होगी? छोटे बच्चे से कार मूव होगी? मैंने किया था जब मैं छोटी थी से। अच्छा, तो 3-4 साल पहले। तू थोड़ी ज्यादा ताकतवर होगी तब। नहीं, उसका टॉय कार नहीं होगा तू। चलो, nevertheless, okay, you pushed a car and car moved, that means you did some work. ठीक है? If you push a car and the car doesn't move, means you did not do any work. Okay, good. A person pushing against a wall also does no work since he is not able to move the wall. Similarly, a coolie does no work while standing with a heavy box on his head. Box को head पर, हाँ तुम उसको देखो, नीचे देखो किताब में। तुम लोग 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चे अब नहीं रहे, ये रियलाइज करते हो अपने आप में? नहीं करते हो तो रियलाइज करो कि अब तुम लोग बड़े हो गए हो। While standing with a heavy box on head, as there is no motion, although he may get tired holding it, but the coolie does work when he raises the heavy box to his head. जमीन पे पड़ा हुआ बॉक्स को जब उठा करके वो अपने सर पे रखेगा, then he is doing work. ठीक है? बट उस सामान को रखे रखे अगर एक जगह पर वो खड़ा है, then he is not doing any work. बोलिए। But if he is like holding it on his head and he is walking, then is Talking, walking, हाँ. Then is work done on the box or is the work done on himself? So the energy must be stored inside the box. मतलब अरे नहीं, वो लेकर के वॉक करेगा, then he is doing work, बट वो वर्क वो नहीं कर रहा, वो वर्क फ्रिक्शन कर रहा है। ठीक है? So friction is the force and the distance he moves is the work done. Work done multiplied, force multiplied by distance will be work done, but वो फ्रिक्शन कर रहा होगा, वो फ्रिक्शन फोर्स है जो कि अप्लाई कर रहा होगा ग्राउंड उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो मूव करता है। So when we are walking, the work is done by friction. Yes, the work is done against the friction force. ठीक है? या हमारे ऊपर जो वर्क करता है वो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है, वही हमको मूव कराता है। ठीक है? हम बेसिकली ग्राउंड को पुश करते हैं पीछे की तरफ और उसका फ्रिक्शनल कंपोनेंट जो होता है वो हमको आगे की तरफ पुश करता है। ठीक है? And we move. Nevertheless, let us move forward. Work is also done by a force if force applied on a body changes its shape or size. So basically एक कोई स्पॉन्ज ले लेते हैं, स्प्रिंग ले लेते हैं and we try to compress it. ठीक है? पुश करते हैं उसको या पुल करते हैं तो उसका साइज डिफॉर्म होता है। Now this deformation process में we are again doing work. ठीक है? So application of force पे अगर कोई मोशन हो रहा है then we say that work is done, या फिर और डिफॉर्मेशन अगर हो रहा है, सेम साइज में चेंजेस हो रहा है, then we also say that work is being done. Is that okay? For example, if a boy squeezes a toothpaste tube or a gum tube or a rubber ball, he does work in changing shape of the tube or the ball. ठीक है? Similarly, a boy does work in stretching a rubber string in which size of the string increases. Thus, following two conditions must be fulfilled for work to be done. अब इसको highlight कर लीजिए आप लोग।
दूसरा कंडीशन क्या था? पहला तो ये था, दूसरा था वर्क इज said to be done if a force or if an applied force So you have to underline the last line, right? right, if an applied force changes shape or size of an object. So thus following two conditions must be fulfilled to for work to be done. A force must act on body. दूसरा condition, the force must produce a change in position, that is motion of the body, or change in size or shape of the body. ठीक है, that is deformation. Factors affecting the amount of work. दो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे. पहला, खुद फोर्स कितना अप्लाई किया आपने, क्वांटिटी ऑफ फोर्स अप्लाइड, the magnitude or quantity of the force applied, and the distance moved by the body in the direction of force, or the extent of deformation caused in the object. Is that okay? तो दूसरा वाला कंडीशन क्या था, या तो मोशन हो या फिर डिफॉर्मेशन हो. तो एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन जो होगा वो भी हमको वर्क डन जो होगा उस पे इफेक्ट डालेगा. सो दो फैक्टर्स इज, फर्स्ट फैक्टर इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क में क्या रहेगा, दो फैक्टर्स रहेंगे. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी मतलब अमाउंट ऑफ वर्क, आर नंबर वन magnitude of force or applied force, or सीधी बात, applied force, and the second one is, So highlight करना है. नहीं इसको नोट करना है, हाथ से लिखिए कॉपी पर. And second one is distance moved by the object or deformation produced in the object. Is that okay? First one, dependence of amount of work done on the magnitude of force applied on the body. Work done is more if the force applied to move the body is more. So if you are applying a larger force to move a body, the work done is going to be more. If we are going to apply a smaller force to move a body, the work done is going to be less. ठीक है? More work is done by us if we lift a bucket full of water from ground floor to the first floor than if we lift an empty bucket to the same height. The reason is that we have to apply a greater force to lift the bucket full of water than to lift a empty bucket. ठीक है? Empty bucket को उठाना है तो कम फोर्स लगेगा, बहुत आसानी से उठा लेंगे हम लोग खुशी, और पूरा बकेट भरा होगा तो it will be difficult and it will be tough for us to lift it, and we will be doing more work if we lift it by the same amount. Dependence of the amount of work done on the distance moved by the body in the direction of force. So
सेम फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं और एक बॉडी ज्यादा दूर जाती है और दूसरी बॉडी कम दूर तक जाती है, तो द वर्क डन on the body which is moving farther is going to be more, and the one which is moving to a smaller distance is going to be less. ठीक है? Similarly, सेम फोर्स अप्लाई करने पर किसी बॉडी में अगर डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है तो दैट इज गोइंग टू हैव मोर वर्क डन ऑन इट, whereas किसी दूसरे बॉडी में अगर कम डिफॉर्मेशन होता है तो द वर्क डन इज गोइंग टू बी लेसर. इज दैट ओके? Am I clear? Yes, sir. Very good. More work is done by us if we lift a bucket of water from ground floor to the second floor than we lift the same bucket of water from ground floor to the first floor. Distance moved is larger, the work done is larger. Deformation is larger, the work done is larger. ठीक है? Nice. Definition of work. We define work as follows. The work done by a force on a body is equal to the product of the force applied and the distance moved by the body in direction of force. Work done is equal to force into distance moved in direction of force. ये वाला highlight कर लीजिए definition of work. वैसे तो 2 बार हम लोग कम से कम लिख चुके हैं, but फिर भी highlight कर लीजिए. हाँ, वो पूरी चीज. मतलब फोर्स अप्लाइड बट ओके, ये हाईलाइट कर लिया हम लोगों ने पोर्शन. वेरी गुड. In figure 4.7, let a force F be applied on a body which moves it from position A to position B. ठीक है? और पोजीशन A से पोजीशन B का मूवमेंट जो है उसको ऑब्जर्व करिए. फॉर एग्जाम्पल, ये एक बॉक्स है, ठीक है? इसको हमने क्या किया? मूव किया. चलो, यस, हाँ, नहीं सर, अभी नहीं है, अभी नहीं. थैंक यू. ये बॉडी थोड़ी देर मूव करने के बाद ठीक है? What I am trying to show you guys is इसके रेयर एंड से रेयर एंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं हम. इनिशियल रेयर एंड डिस्टेंस टू फाइनल रेयर एंड डिस्टेंस, या फिर इनिशियल फ्रंट एंड डिस्टेंस टू फाइनल फ्रंट एंड डिस्टेंस. हाँ, दोनों में से किसी एक को मेजर करते हैं. एंड दिस इज गोइंग टू बी माई एस. ठीक है? तीसरा मेजरमेंट भी ले सकते हैं. इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टू द फाइनल सेंटर ऑफ द बॉडी. इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है? और ये तीनों डिस्टेंस क्या होंगे? एस होंगे. बट इसके अलावा कुछ और लिया, जैसे पहले वाले केस में रेयर ले लिया और दूसरे वाले में फ्रंट ले लिया, तो डिस्टेंस मूव क्या आ जाएगा आपका? गलत सलत.
ठीक है, बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। ऐसी ग्राफिकल क्वेश्चंस में गलती बिल्कुल ना करें। बोलिए बेटा। मिडिल पॉइंट यस, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है। अभी लग रहा होगा ये बहुत फालतू की चीज है, सर क्यों बता रहे हैं, बेवकूफ है। बट क्वेश्चन जब फ्रेम करके इस पे एप्लीकेटिव आएगा तो आप लोग को क्या दिया जाएगा, इसका इनिशियल यहां से मेजरमेंट करेंगे और इसको बोलेंगे कि ये जीरो डिस्टेंस है। टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसका पीछे वाला पूंछ जो है, ठीक है, दैट इज लाइंग एट x इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 0 से 3 मीटर डिस्टेंस पर है इसका पीछे वाला पूंछ। इस ऑब्जेक्ट का लेंथ जो है दैट इज से फॉर एग्जांपल 0.5 मीटर है, और 5 सेकेंड के बाद टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर ये था पोजीशन, और टाइम t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर, 8 सेकेंड पर फ्रंट एंड मेरा जो है दैट इज लाइंग एट x इज इक्वल टू 8.5 मीटर। इज दैट ओके? तो इस 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड्स में हमारे बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा, बताइए, ऐसे सरप्राइज मत हुई। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 8 meters. 8 मीटर ट्रेवल किया। ठीक है, तो हम लोग काफी स्मार्ट हैं। हाँ, मैं आप सारे लोगों से पूछ रहा हूं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर उसका पीछे वाला पूंछ जो है, ठीक है, पीछे वाला पोर्शन इज एट x इज इक्वल टू 3 मीटर, उसका खुद का लेंथ जो है 0.5 मीटर है, और टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर उसका फ्रंट एंड इज एट x इज इक्वल टू 8.5 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रैवल्ड? 5 मीटर। वेरी गुड। एनी अदर आंसर्स? कोई और कुछ सोच पा रहा है? 8 मीटर। ओके, हम समझ में कैसे आएगा? Sir, can you repeat the question? Yes, I am repeating the question again and again. टाइम t is equal to 3 सेकेंड, घड़ी देखना चालू किया, 3 सेकेंड हुआ, तब मैंने ये देखा कि मेरे बॉक्स का पीछे वाला पोर्शन जो है इस वॉल से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इस पर कोई फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से बॉक्स मूव करता जा रहा है। अब टाइम t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरे बॉक्स का फ्रंट एंड जो है दैट इज 8.5 meters away from the wall. ठीक है, now the question is, in these 5 seconds what distance does my box move? ठीक है, पहले ये हम पता लगाएंगे, और मान लो फोर्स दिया हुआ हो तो फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करके वर्क डन हमको मिलेगा। जैसे वर्क डन आपको पूछा गया है और बोला गया कि 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस बॉक्स पे, तो व्हाट इज द वर्क डन? तो क्या करोगे? किसको मल्टीप्लाई करोगे? डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे। कौन सा डिस्टेंस मल्टीप्लाई करोगे? वो ढूंढने आना चाहिए। सॉरी, I'm not sure if my answer is correct or not, but time is equal to 3 seconds. So 3 seconds divided by 0.5 into 8.5 into 8 seconds. नहीं नहीं, वैसे नहीं सोचना है बेटा, वो बहुत बड़ा हो गया, वो बिल्कुल नहीं है। आपको सिंपल सोचना है। What I am saying is time t is equal to 3 seconds पर the box is positioned such that उसका rear end is 3 meters from the wall. ठीक है, and time t is equal to 8 second पर सेम बॉक्स आगे बढ़ जाता है और अब उसका फ्रंट एंड जो है दैट इज लाइंग एट द 8.5 meters from the same wall. ठीक है,
एंड इस सिनारियो में मतलब इस पिछले 3 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच में व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉक्स। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि whenever we have to find the distance, we have to find between the position of rear end versus rear end, initial rear end and final rear end. So initial rear end is at 3 meters and final rear end is at 8 meters. क्योंकि 0.5 मीटर इसका खुद का लेंथ है, फ्रंट एंड इज एट 8.5 मीटर, तो rear end is at 8 meters. Now what is the difference between 8 and 3? 5 meters, which he told correctly. So the distance moved is 5 meter in this case. Is that okay? Total distance is 8 meter. नहीं, वो तो यहां से है ना, यहां से डिस्टेंस 8 मीटर है, तो वहां से रहने दो। आपको तो डिस्टेंस मूव्ड पूछा गया है ना, तो पहले ही आगे खड़ा था और आगे गया, तो जहां से गया वो वहां से डिस्टेंस मेजर करोगे ना, 5 meters कि वॉल से डिस्टेंस मेजर करते रहेंगे। हाँ बोलिए। distance between its original position and And the final position, so distance moved is 5 meter. हाँ बेटा, 0.5, 3.5 and you said 8.5 minus 8, हाँ 8.5 minus 3.5 करो या 8 minus 3 करो, ठीक है। आप इनिशियल पोजीशन ऑफ फ्रंट एंड ले सकते हो विच इज एट 3.5 मीटर एंड फिर इसके फाइनल पोजीशन ऑफ फ्रंट एंड से इनिशियल पोजीशन ऑफ फ्रंट एंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट द डिस्प्लेसमेंट। इज दैट ओके? ये थोड़ी सी बात समझ में आई क्या? yes sir. क्या हुआ इसिता? सॉरी ताइसा, हाँ माय मिस्टेक। समझ में आया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कुछ एक और क्वेश्चन कराऊंगा तो मुझे भी पता चलेगा समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। Obviously, if force acts on a body and body does not move, no work is done. That is, work is equal to 0 if D is equal to 0. Now, do you know segment? The work done by a force is 0 if the body moves in direction perpendicular to the direction of force. इसको underline कर लीजिए, it's important. Do you know का first line? The work done by a force is 0 if the body moves in a direction perpendicular to the direction of force applied. Is that okay? For example, when a stone is tied at the end of a string is whirled in a horizontal circular path, the motion of a stone is always normal or perpendicular to the force of tension. ठीक है, स्ट्रिंग में एक स्टोन को बांधिए और उसको गोल गोल घुमाइए। कौन सी सर्कल में? हॉरिजॉन्टल सर्कल में। वर्टिकल में नहीं घुमाना है, ऐसे नहीं घुमाना है, ऐसे घुमाना है। कैसे घुमाना है? हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल क्या होता है? ऐसे घुमाएंगे अगर उसको तो ये वर्टिकल सर्कल होता है, ऐसे घुमाएंगे उसको तो हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो कैसे घुमाना है आपको? हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाना है, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद क्या बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में अगर आप स्टोन को घुमाते हैं तो आप जो फोर्स टेंशन के फॉर्म में स्ट्रिंग पर अप्लाई कर रहे हैं विच इज रोटेटिंग दैट स्टोन विल डू नो वर्क ऑन द मूविंग स्टोन। ठीक है, व्हाई? क्योंकि टेंशन जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसका डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्टोन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? मेकिंग, परपेंडिकुलर का मतलब पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है मेकिंग 90 डिग्री एंगल। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन में अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या होगा? 0। बात समझ में आ रही है? एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू, तो नोट कर लेते हैं रेड मार्क से।
अभी फर्स्ट लाइन हाईलाइट कर लिया है ना, तो सर्कुलर मोशन के लिए अच्छा हाँ है ही ना सब में, उसका एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन, ठीक है हाईलाइट तो हो ही गया है, लिखने की जरूरत फिर नहीं है। खुश रहो। कितने आलसी बच्चे हो गए। बहुत पिटाई पड़ेगी। When a stone is tied at the end of the string is willed in a horizontal circular path, the motion of stone is always normal to the normal का मतलब क्या होता है? Perpendicular। वो लिख लो सर्कल करके, नहीं तो भूल जाओगे तुम, मुझे पूरा भरोसा। सारे लोगों के नोटबुक में लिखा होना चाहिए नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्योंकि मैं 515 बार इसको मैथमेटिक्स में यूज करने वाला हूं एट डिफरेंट टाइम्स। कोई बात नहीं है, फिजिक्स में भी यूज करूंगा। और किसी ने सरप्राइज दुख दिया तो मैं मारूंगा। देयरफॉर इसलिए याद रखना है, इसलिए मैं बता रहा हूं और रिमाइंड भी कर रहा हूं कि याद रखना है, ठीक है? वेरी गुड। Work done by the tension force in circular motion of stone is 0. Similarly, a motion of Earth around Sun, ठीक है? The force of attraction on Earth by the Sun is always normal to the direction of motion of Earth. So, no work is done by gravitational force of Sun on Earth. Or, for example, Moon is moving under the influence of gravity of Earth around itself, around Earth. So the work done by the force applied by Earth on the Moon in order to rotate it or revolve it around Earth is going to be 0. Work done by the force applied by Earth on the Moon in order to make it revolve around Earth is 0. क्यों? क्योंकि यहां पर भी फोर्स जो होगा उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर नॉर्मल है, सर्कल में ही घूमेगा ना, रिवॉल्व कर रहा है तो अर्थ के अराउंड सर्कल में रिवॉल्व करेगा, तो वो भी गोल गोल घूम रहा है, तो फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगा परपेंडिकुलर होगा, लाइक स्टोन एंड स्ट्रिंग। इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है हम लोगों को? वेरी गुड। ऑनलाइन बच्चों को समझ में आ रहा है? हेलो, क्या हम लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अभी तुम लोग को सुनाई दे रहा है मेरी बातें? मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है। आई एम नॉट एबल टू हियर एनी वन ऑफ यू। I was unable to unmute myself. I can hear you. You can hear me, but you are unable to understand, right? Yes, so I didn't get the point. Not an issue. Therefore, I am asking so many times. तुम लोग को अनम्यूट करके रिप्लाई करने में इतना टाइम लग रहा है। Sorry, sir, my mic wasn't working for a second. Okay, no issues. देखो ये है अर्थ, ठीक है? ये है हमारे चंदा मामा, ठीक है? येलो येलो दिख रहा है? वेरी गुड। तो बचपन में हम सारे लोग लोरी सुनते हैं चंदा मामा की। वेरी गुड। So now what I'm trying to say is this moon is revolving around Earth in this kind of circular path, ठीक है? और moon का at any point of its motion, the direction of motion is always, जैसे यहां पर जब वो है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या रहेगा? इस तरीके से along the tangent drawn at that point. Tangent क्या होता है?
a line that touches a circle at how many points? 15, 16 और what? Tangent क्या होता है? सुना है पहले कभी हम लोगों ने? हाँ, क्या बात है, सबने सुना है, बताइए। और डेफिनेशन खाली नहीं पता है। क्या होता है, क्या होता है, बता बता बता। If I'm not mistaken, it's a line which touches a curve. Sorry. If I'm not mistaken, it is a line which touches a curve. I'm not sure if it's correct or not. नहीं, you are correct. Oh. Very good. I'm happy that at least somebody knows it. Rest are quite with two people. So what does it mean? A line that touches a curve at only one point. Is that okay? नोट किया किसी ने? सब हम लोग सुपर आलसी लोग हैं। आता कुछ नहीं है, लेकिन नोट कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो मैथ्स का चीज है सर। हाँ, क्या हुआ? कोई बात नहीं बेटा, नोट करेंगे। फिजिक्स में भी टेंजेंट का डेफिनेशन नहीं पता था तुझे? A line that touches a curve at only one point. ठीक है? And during each point on motion or at each point or during the motion of the moon or of any object which is moving in a circular path, ठीक है? अभी मून के रेस्पेक्ट में ही नहीं बात कर रहा हूं मैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किस डायरेक्शन में होगा? जब वो इस पॉइंट पर है तो इस पॉइंट पर जो टैंजेंट होगा उसके अलोंग उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। जब वो यहां पर आएगा तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? यहां पर जो टैंजेंट होगा उसके अलोंग उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? ये बात हम लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? नहीं सर, मुझे नहीं समझ में आया। कैन यू रिपीट प्लीज? यस, जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, यहां से जब क्रॉस कर रहा है पॉइंट ए से, ठीक है, तो इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अलोंग दिस टैंजेंट। ठीक है, वी मे कॉल इट 80। जब ये पॉइंट बी पर है तो इट इज अलोंग टैंजेंट बीपी, क्योंकि टैंजेंट का डायरेक्शन, टैंजेंट चेंज कर गया बी पॉइंट पर, तो इट इज नाउ अलोंग टैंजेंट बीपी। अगर यहां पर आएगा तो किस डायरेक्शन में हो जाएगा इसका मोशन? सी। हाँ, सी पॉइंट है तो सी एक्स बोल सकते हैं हम, वॉट एवर नेम वी वॉन्ट टू गिव इट, वी मे गिव इट सी एक्स नेम। सो सी एक्स के अलोंग उसका मोशन हो जाएगा। नहीं, चेंजिंग इट्स पोजीशन तो चेंज ही हो रहा है ना। हाँ, it is moving in a circular path, thereby its direction of motion is continuously changing and its direction of motion is always along the tangent. It is always along the tangent. सर्कुलर मोशन में ये हमेशा ही होता है। कोई भी सर्कुलर मोशन देखेंगे किसी भी चीज का, सर्कुलर मोशन, in circular motion direction of motion क्या हुआ? Direction of motion is always perpendicular
perpendicular to, sorry, is always along tangent at that point that is perpendicular to the radius at that point. Is that okay? Sir, I just wanted to confirm something. So all the tangents, do they meet at a particular point? No, they don't need to. They may Okay. or they may not be. But sir, when we are saying But they perpendicular, are going to meet the circle at one point. okay, sir. Okay. अब जैसे ये tangent और इसके पैरेलल डायगोनली डायमीटर के अलोंग दूसरे एंड पर जो डालेंगे tangent वो कभी नहीं मिलेगा, दे आर गोइंग टू बी पैरेलल. Yes. ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि दो tangents मिले ही. Okay, sir. क्लियर है? तो वो मिले या ना मिले ये मैथमेटिक्स उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है. मेरा सिर्फ यहाँ पर बट इन सम केसेस वो मिल सकता है ना, जैसे बी और ए, सी और बी. अभी सम केसेस में उसको मिलने देना, उसके मिलने से मुझे क्या प्रॉब्लम है. उसने क्वेश्चन पूछा कि क्या वो मिलेंगे, तो माय आंसर इज कि नो, हमेशा नहीं मिलेंगे. मुझे भी दिख रहा है कि सम केसेस में मिल रहा है, ए और बी ड्रॉ किया वो दोनों मिल रहा है. बट एक कंडीशन ऐसा भी है जब वो नहीं मिलेंगे, तो मुझे आपको ये दिखाना है कि जो कंडीशन नहीं मिलेंगे वो वाला आप देख पाओ. ठीक है, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. हाँ, अभी अगला पॉइंट यहां पर ये था कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो होगा, अगर मून या अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ सन के अराउंड या मून अर्थ के अराउंड, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा. अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, उसी की वजह से वो मूव कर रहा है. राइट ना? ये रेडियस के अलोंग है और ये टेंजेंट के अलोंग है. दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री. राइट एंगल. वर्क डन क्या होगा? लड्डू, अंडा, 0. ठीक है, वेरी गुड. तू टेलीस्कोप लगा के देख. Similarly, if a coolie moves on a plain route with luggage on his head, the work done by him against the force of gravity is 0. ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ. ठीक है, और वो मूव कैसे कर रहा है? हॉरिजॉन्टली. तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री. मोशन इस डायरेक्शन में और उसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स क्या है? नीचे के डायरेक्शन में. तो एंगल 90 डिग्री हो गया ना. वो बेसिकली अगर कोई भी पुली होगा, पुली बनाने तो आएगा नहीं मुझे, बट ऐसे बना देता हूँ. एक इसका गर्दन, दो इसका पैर, और ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में. इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री. तो वर्क डन क्या होगा? ग्रेविटी फोर्स की वजह से लड्डू, फ्रिक्शनल फेस, हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन होगा. ठीक है, या रिएक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन होगा, वो बाद में पढ़ेंगे हम. बट यहाँ पर प्रिंसिपल टॉक इज रिगार्डिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर जस्ट टॉकिंग एंड फोकसिंग ऑन फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से कोई वर्क डन होगा कि नहीं. ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वर्क डन विल बी 0. इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 4:30 हो गया, सॉरी 5:30. ठीक है, 5-7 मिनट रुक जाओ, फिर हम खत्म करते हैं क्लास. अबे यूनिट ऑफ वर्क पढ़ा ले क्या? एक्सपेक्टेशन लगा अभी आप छोड़ने वाले हो. कोई बात नहीं है, 5 मिनट तक अपने एक्सपेक्टेशन को बंद करके रखो.
अभी और 5 मिनट. Unit of work, we have read that SI unit of force is Newton and the distance, SI unit of distance is meter. Hence, SI unit of work is Newton meter or joule. ठीक है, ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग. The unit joule has been named after name of scientist James Prescott Joule. ठीक है, जेम्स जूल नाम था. इन्होंने ही पहली बार हीट एनर्जी और वर्क का इक्विवेलेंस कैलकुलेट किया था. 1 कैलोरी इज 4.184 जूल. और उसी पर हम लोगों ने यूनिट ऑफ वर्क जो है वो जूल रख रखा है. ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. इज दैट ओके? शुरू में बताया था ये सारी चीजें, उसी को रीड कर देता हूं, खत्म हो जाएगी कहानी. Definition of joule, since 1 joule is 1 Newton into 1 meter or 1 joule is 1 Newton into 1 meter, which can also be written as 1 joule is equal to 1 Newton meter. ठीक है, 1 Newton into meter is called 1 joule. Thus 1 joule is the, इसको highlight कर लीजिए, 1 joule is the work is said to, 1 joule of work is said to be done if 1 Newton of force when acting on a body moves it by 1 meter in direction of force. Is that okay? Just highlight that basic definition of 1 joule. You must remember it. ठीक है, क्योंकि define joule could be a question in your paper. A bigger unit of joule is kilojoule. 1 kilojoule is equal to 1000 joules. 1 kg is equal to 1000 joules. 1 mj is equal to 10 to the power 6 joules or 10 to the power 3 kilojoule. If we measure the force in kgf and the distance in meter, the unit of work is kgfm. Since 1 kgfm is 9.8 Newton, 1 kgf is 9.8 Newton, therefore 1 kgf meter is equal to 9.8 joules. 9.8 Newton into meter, that is 9.8 joule. 1 kgf meter is 1 kgf meter is equal to 9.8 joule. ठीक है? Assuming that force of gravity on mass of 1 kg is 9.8 Newton. अगर assumption हम ये लेते हैं कि 1 kg mass पर 1 kg mass has gravitational force is equal to 10 newtons, तो 1 kgf meter क्या हो जाएगा? 10 जूल. ठीक है, बात समझ में आ रही है? बोलिए. So the gravitational force of like objects with different mass is different or same? डिफरेंट ना, मास जितना ज्यादा रहेगा उतना फोर्स रहेगा. 5 kg का लेंगे तो 5 into 9.8 हो जाएगा. 10 kg लेंगे तो 10 into 9.8 हो जाएगा. ठीक है, तेरा दिमाग पढ़ाई पे बिल्कुल नहीं है बेटा. देख तेरे पीछे, उसको डायरेक्ट आई कांटेक्ट में रहने दे. ओके, इन चैप्टर 3 यू हैव, चैप्टर 3 तो पढ़ा नहीं हमने. You have learned that unit of moment of force is Newton into meter. The symbol Nm, but it is not written as joule. Only for work and energy, the product Newton into meter is written as joule. This is to distinguish moment of force from work or energy. ठीक है, ये जब तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, चौथा पढ़ने के बाद ना, तब फिर डिस्कस करेंगे. अबे तुम लोग का नमूना स्कूल है तो मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो हमेशा 3 के बाद ही 4 पढ़ाता हूँ. तुम लोग का स्कूल 4 के बाद 3 को पढ़ाता है, तो मैं मेरी क्या गलती है? हाँ भाई, चलो आप जाओ, चल मारो तुम. ठीक, लिखना क्या था किसी ने कंप्लीट नहीं किया, अगले लेक्चर में पूछो. चलो.